Hey, good morning class. How are you? I hope you all are fit and fine in your home and doing your job in proper manner. So myself Anil Adhikari, PGT Mathematics from DPS Lamachor, and in this session we will discuss our next chapter, which is linear programming. This chapter contains 5 marks for the CBSE exam point of view. So we will discuss one by one. Listen, student. This chapter contains 2 types of questions. The very first is bounded and the second one is unbounded solution. So we will only focus on the bounded feasible region areas problem, not unbounded areas, because unbounded area has been reduced by the CBSE due to the pandemic. So our motto is to learn how to find the linear programming problems, how to create them, how to create the word problem in case of constraints, and then rectify the feasible region and find the corner points as well as the feasible region and optimal solution. So let us discuss the very first, what is linear programming. So basically a linear programming problem is one that concerned with finding the optimal value. ठीक है. Now what is optimal value? Dear student, optimal means the best, है ना. optimal का मतलब होता है best. It means जैसे good, better and best, है ना. तो optimal solution का मतलब होता है आपने best solution find करना है. इसको ऐसे समझिए, आप मान लीजिए कोई एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड यू हैव 50,000 रुपीज़. सो आपकी कोशिश ये रहेगी कि आप 50,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट करके मैक्सिमम प्रॉफिट कितना अटेन कर लें. तो जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वहाँ पे मैक्स टू मैक्स, उसको बोलेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन. अब इट कैन बी मैक्सिमम और मिनिमम. ठीक है, मैक्सिमम तो प्रॉफिट होगा और ऑब्वियसली बात है मिनिमम क्या होगा, मिनिमम कॉस्ट होगी जो आप इन्वेस्ट करेंगे किसी स्टार्टअप में. सो a linear programming problem is one that concerned with finding the optimal value. It will be minimum and maximum value of a linear function. This is known as objective function. So basically what is objective function? So objective function basically denoted by capital Z, and it is a linear combination between variable x and y. Okay, so Z is denoted at ax plus by as, ठीक है, ये z को एक्सप्रेस करते हैं इस तरीके से, वेर x एंड y बोथ आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स. बिकॉज ये क्यों डिसीजन वेरिएबल्स हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू के बिहाफ पे ही इसकी वैल्यू डिपेंड करती है और z की वैल्यू ही क्या बोली जाती है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोली जाती है. ठीक है स्टूडेंट्स, वट एवर द वैल्यू ऑफ z इज, इट इज कॉल्ड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, द ऑप्टिमल वैल्यू. ओके, इट कैन बी मिनिमम एंड मैक्सिमम. ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है. ओके, and a and b of course are constant. Now subject to constraints. Subject to constraints means constraints are called as restrictions. Okay, what is constraints? Constraints are known as restrictions. अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो you have to do any work within some limits, है ना, some guidelines you have to follow. जैसे आजकल पेंडेमिक में हम कहीं भी बाहर निकलते हैं तो we have to wear the mask, we have to sanitize our hand, we have to follow the social distancing norm. ओके, सो दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस टू गो आउट फॉर एनी वन एल्स. किसी के लिए भी बाहर जाने के लिए ये कुछ ज़रूरी जो है नॉर्म्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं एंड वी हैव टू फॉलो इट. ठीक है, तो ठीक वैसी रिस्ट्रिक्शंस होती है लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम में. ठीक, जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, उन्हें हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी के फॉर्म में. ठीक है, द रिस्ट्रिक्शंस विच वी हैव गिवन आर इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़. लीनियर इनइक्वालिटीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ा है इन 11th स्टैंडर्ड. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द एल्गोरिथम टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. सो बेसिकली द वेरी फर्स्ट स्टेप, राइट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच हैज़ बीन गिवन टू यू. ठीक है, क्वेश्चन में दिया होगा z इज इक्वल टू ax प्लस b. आई एम अगेन टेलिंग यू a and b आर कॉन्स्टेंट एंड x and y आर द डिसीजन वेरिएबल्स. सेकेंड स्टेप, फाइंड द फिजिबल रीजन. नाउ व्हाट इज फिजिबल रीजन? फिजिबल रीजन मीन्स द रिक्वायर्ड रीजन. ठीक है, जो रिक्वायर्ड रीजन हमें चाहिए. ठीक है, व्हाट इज फिजिबल रीजन? फिजिबल रीजन इज अ रीजन विच इज रिक्वायर्ड टू अस. क्वेश्चन में जो भी हमें रिस्ट्रिक्शन दिए होंगे उन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए जो भी हमारा डायग्राम एक्स वाई प्लेन में बनेगा उसी को हम बोलते हैं फिजिबल रीजन. और इसका शेप कैसे होता है? ये एक पॉलीगन के शेप में होता है. इट इज एज अ शेप ऑफ पॉलीगन ऑन बिहाफ ऑफ द गिवन कंस्ट्रेंट्स. ठीक, सो फाइंड द फिजिबल रीजन ऑन बिहाफ ऑफ गिवन कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शंस या कंस्ट्रेंट्स, वट एवर यू कैन से. थर्ड स्टेप, फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ पॉलीगन. नाउ यू हैव मेक अप ग्राफ. ठीक है, आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ द गिवन कंडीशंस. अब वो जो ग्राफ है उसका शेप हमेशा आप देखेंगे पॉलीगन का शेप होगा. ओके, तो जो भी आपका शेप आया पॉलीगन का, अगर पॉलीगन है तो उसमें वर्टेक्स होंगे,
ठीक है, जैसा ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, रेक्टेंगल 4 वर्टिसेस, है ना। तो उसी तरीके से जो भी पॉलीगन, वट एवर द पॉलीगन यू विल गेट ऑन बिहाफ ऑफ द गिवन रिस्ट्रिक्शंस, note down its corner points. Corner points means its vertices, coordinate of vertices. Now next step, now find the optimal solution by putting the value of corner points on objective function. It means ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दिया है इसकी वैल्यू हर एक कॉर्नर पॉइंट पे आप फाइंड करेंगे, ठीक है। डिफरेंट कॉर्नर पॉइंट्स पे डिफरेंट वैल्यूज इसकी आएगी। Next, let capital M and small m be the largest and smallest value of z at these corner points. Now, after substituting the values of x and y from the corner point to the objective function, we get the different values of z. So, let us suppose capital M is the largest value of z and small m is the smallest value of z. Okay. So, next, when the feasible region is bounded. Now, listen, मैंने फिर वही कहा, unbounded region reduced by the CBSE due to pandemic. So, we have to focus only on the region which are bounded. So, अगर region bounded है, पॉलीगन का शेप मिलेगा तो अल्टीमेटली बाउंडेड तो होगा ही वो, ठीक है। तो इफ द रीजन इज बाउंडेड देन द कैपिटल एम, ये कैपिटल एम और स्मॉल एम ये करस्पॉन्डिंग रिस्पेक्टिवली क्या बोले जाएंगे, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन z, ठीक है। क्या कहा मैंने, z की वैल्यूज हमने डिफरेंट कॉर्नर पॉइंट्स पे फाइंड की। फाइंड करने के बाद आपको एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, एक मिनिमम वैल्यू मिलेगी। जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो उस फिजिबल रीजन के लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम सॉल्यूशन हो जाएगा, मैक्सिमम ऑप्टिमल वैल्यू। और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी किसकी, z की। z इज नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यही डिपेंड करता है कि वैल्यू आपकी मैक्सिमम आनी है या मिनिमम आनी है। नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस इंफॉर्मेशन व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, टिल देन पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। Okay, now let us do some questions on behalf of this information. Dear student, each year 5 marks question comes from this particular topic, so you cannot ignore this topic. Okay, there are 3 types of questions in linear programming problem. The very first is diet related problem, second is transportation and third is manufacturing problem. ठीक है, so डिस्कस करेंगे हर एक टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। टफ नहीं हो रहा। So, exercise 12.1, the very first question from this exercise. Maximize z. Question number first, maximize z. We have to find the maximum value of z. It means we have to find the maximum value of z, where z is objective function and it is given as 3x plus 4y subject to constant. Constants means restrictions. So, restrictions given here, x plus y less than equal to 4 and x and y both greater than equal to 0. So, these are the restrictions. Now, what we have to do here, we have to find the maximize z means the maximum value of z under these given restrictions, or you can say these given conditions. ठीक है, इनको constants बोलते हैं हम, ठीक। So, what will we do? First, we will find the feasible region on behalf of this given information. Okay. So, x plus y less than equal to 4, x less than greater than equal to 0 and y greater than equal to 0. So, from there we can find two coordinates, ठीक है, to plot this line. So, when x will be 0, then what will be the value of y? It will be 4.
व्हेन y विल बी 0 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, टू प्लॉट दिस इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को प्लॉट करने के लिए, ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे. इट मीन्स वी विल टेक इट लाइक x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड फ्रॉम देयर वी विल फाइंड टू कोऑर्डिनेट्स टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस inequality. Now this is x axis, this is y axis and this is origin. Okay, now what we have to do, mark the points 0, 4, 1, 2, 3, 4. So this point will be 0, 4. Next is 4, 0, 1, 2, 3, 4. So this point will be 4, 0. Now meet both the points. Okay, so this is the line x plus y is equal to 4. Now what we have to do, we have to find the region bounded by x plus y less than and equal to 4. तो बेटा x plus y is equal to 4 लाइन ये है, लेस देन 4 कहाँ को जाएगा, नीचे को, इस लाइन से बिलो या अबव. तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे एक छोटा पॉइंट, दिस इज 4, 0, ये तो इस लाइन में ही है, तो दिस पॉइंट इज बिलो द लाइन, दिस इज 3, 0. नाउ पुट दिस कोऑर्डिनेट ऑन दिस इनइक्वालिटी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4. हम देखेंगे क्या ये इस रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इनइक्वालिटी को. 3, 0 पुट हियर, सो 3 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4. यस इट इज 3 लेस देन 4 ही होता है. तो इसका मतलब इस लाइन से आपको कहाँ जाना है, बिलो, फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन. सो इस लाइन से हम बिलो जाएंगे. ओके, नाउ सी x should be greater than equal to 0, y should be greater than and equal to 0. So फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही x और y बहुत क्या होते हैं, ग्रेटर देन 0. तो इसका मतलब हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नहीं जा सकते. सो व्हाट विल बी आवर रिक्वायर्ड रीजन, द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन इज दिस. ठीक, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन. ठीक है, विच इज सेटिस्फाइंग दीज गिवन रिस्ट्रिक्शंस. तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्या हो गया, फिजिबल रीजन हो गया. नाउ व्हाट आर द कॉर्नर पॉइंट्स, 1, 2 and 3. These 3 are the corner points which are given by the फिजिबल रीजन. तो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो गए, फाइंड करेंगे यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स. सो लेट इट बी पॉइंट P एंड लेट इट बी पॉइंट Q. सो कॉर्नर पॉइंट्स आर, एंड ये तो ओरिजिन है 0, 0. सो पॉइंट P 0, 4, point Q 4, 0 and origin 0, 0. These are the 3 corner points. ठीक है, which is bounded by the फिजिबल रीजन. इस फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो केवल 3 है यहाँ पे. सो उन्हें हमने राइट कर लिया. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ z. व्हाट इज 3x plus 4y? दिस इज द वैल्यू ऑफ z which is objective function. So now what will we do? We will find the value of z at each corner points. So start from the very first, z at 0, 4. So this will be 3 into 0 plus 4 into 4, that is 16. So value of z at 4, 0. So this will be 3 into 4 plus 0 into 4, and this will be 12. And z at 0, 0, 3 into 0 plus 4 into 0, this will be 0. Now हमें करना क्या था क्वेश्चन में, we have to find the maximum value of z. So the maximum value of z will be 16. So maximum z equal to 16 at किस पॉइंट पे मिल रहा हमें, 0, 4. So at point 0, 4. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, क्योंकि एरिया हमारा बाउंडेड है, तो यही जो मैक्सिमम वैल्यू है यही हमारी मैक्सिमाइज जेड की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, अगर एरिया अनबाउंडेड होता तो उसके लिए प्रोसीजर दूसरा है. बट again I am telling you, it has been reduced by the CBSE, so we have to focus only on the feasible region which is bounded. Okay, pause the video and take the screenshot. Okay,
यू कैन स्किप बेटा, जहाँ पे टाइम लगे यार बीच में रब करने में, यू कैन स्किप द वीडियो. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सिमिलर है बेटा, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, मिनिमाइज जेड. मिनिमाइज जेड इक्वल टू एक्स प्लस 2y and constants has been given. Constants has been given as 2x plus y greater than equal to 3, 2x plus y greater than equal to 3, x plus 2y greater than equal to 6, x and y both are greater than equal to 0. So these are the conditions, or you can say restrictions, under which we have to find the optimal solution, the feasible region, and also find the minimum value of z. Okay. So again I am cross verifying the question. Minimize z, x is plus 2y, subject to constant 2x plus y greater than equal to 3 and x plus 2y greater than equal to 6. Okay. Now let's do it. So dear student, the very first step, we have to find the feasible region which satisfying these given conditions. So for that we have to find out the coordinate of these inequalities. To find the coordinate, what will we do? We suppose this given inequality as an equation to find the coordinates. So when x will be 0, if x will be 0, then value of y will be 3, and second, when y will be 0, when y will be 0, so the value of x will be 3/2. बट 3/2 एक होल नंबर नहीं है. सो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ y इज 1, पुट द वैल्यू ऑफ y इज 1, सो दैट वी गेट 2x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1, है ना. वैसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, देख लो इसको. 2 1 जा 2 + 1 3. नाउ सिमिलरली फ्रॉम हियर व्हेन x विल बी 0, देन 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 3, एंड नेक्स्ट व्हेन y विल बी 0, put here the value of y is 0, then x will be 6. So these are the coordinates of these given inequalities. Now plot the graph. This is x axis, this is y axis, this is origin. Now the very first point 0, 3. So 0, 3 we have to go 3 step above. Okay, this point will be 0, 3. Next 1, 1, so let it be 1. So 1, 1 will be this point. Okay, now meet the point. Okay, and write here 2x plus y equal to 3. Okay, ये स्ट्रेट लाइन होगी. 2x plus y is equal to 3. इनइक्वालिटी हम डिस्कस करेंगे अभी. Next x plus 2y is equal to is greater than equal to 6. So coordinates are 0, 3, again this point, and next 6, 0. So let it be 2, 3, 4, 5 and 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this point will be 6, 0. Now meet both the point. This is the line x plus 2y equal to 6. Okay. Now see, 2x plus y is greater than equal to 3. So beta this is the line 2x plus y equal to 3. अब 2x plus y greater than 3 वो बब जाएगा या बिलो जाएगा, इसको हमने चेक करना है. सो टू चेक दिस वन हम क्या करेंगे, एक पॉइंट इससे बाहर का ले लेंगे और सेटिस्फाई कराएंगे इस इनइक्वालिटी को. अगर सेटिस्फाई हो गया तो इससे बाहर, अदरवाइज अंदर. ओके, सो लेट ये पॉइंट कौन सा है, 2, 0. सो पुट इट ऑन दिस इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी क्या है, 2x plus y ग्रेटर देन इक्वल टू 3. सो लेट इट बी, कोऑर्डिनेट क्या लिया हमने 2, 0 और 2, 0 कहाँ है, अबव द लाइन, लाइन से सॉरी राइट साइड द लाइन, लाइन के राइट साइड में 2, 0. सो पुट हियर, सो 2 × 2 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. यस इट इज सेटिस्फाई हो रही है आपकी इनइक्वालिटी. इट मीन्स इस लाइन से हमको कहाँ को जाना है, बाहर को. ठीक है, बाहर मीन्स राइट हैंड साइड. बिलो बेटा मैं जा नहीं सकता बिकॉज x and y both is greater than and equal to 0. It means whatever the polygon, whatever the feasible region you have to find, it will be
ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नहीं जाएगा, बिकॉज एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इससे बिलो नहीं जा सकता मैं, ठीक। नेक्स्ट इज एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सो दिस इज द लाइन x प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 6। अब इस लाइन के अबव जाएंगे, बिलो जाएंगे, कैसे चेक करेंगे, एक पॉइंट इससे नीचे वाला ले लेंगे, दिस इज 5,0, पुट इट इन द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या है आपके पास, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है। तो सेटिस्फाई कराते हैं इस पॉइंट को, 5,0 पुट हियर, सो 5 प्लस 2 इंटू 0, ओके। ये कितना हो जाएगा, ये मिलेगा मुझे 5, क्या 5 6 से बड़ा होगा, नो। सो इसका मतलब इस रीजन से भी हमें कहाँ जाना है, ये जो लाइन है इससे मुझे कहाँ को जाना है, बाहर को, ठीक है, इससे बाहर को हमें जाना होगा, क्योंकि इससे बिलो वाला कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, इस किसको, इस इनइक्वालिटी को, बिकॉज x प्लस 2y शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। सो इक्वल टू 6 की तो ये लाइन हो गई, ग्रेटर देन कहाँ जा रहा है, बाहर से। तो बेटा आपका जो रीजन आ गया यहाँ पे, ठीक है, वो कौन सा आ गया, अनबाउंडेड। रीजन कैसा हो गया आपका यहाँ पे, अनबाउंडेड, ठीक है, बाउंडेड तो है ही नहीं। सो अनबाउंडेड वाला तो ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया गया है, सो यहीं पे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे और इसको आगे करने की आवश्यकता नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बेटा सभी। क्वेश्चन नंबर 7, सो दैट द मिनिमम of z occurs at more than 2 points. In these questions what we have to do, we have to show that the minimum value of z occurs at more than 2 points. मतलब ये जो z दिया होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसकी मिनिमम वैल्यू एक से ज़्यादा पॉइंट पे आएगी, ऐसा हमें शो करना है। सो लेट अस डू मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू गिवन एज 5x प्लस 10y, ठीक है। तो बेटा वट एवर द वैल्यू ऑफ z, जो भी हमें कॉर्नर पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू मिलेंगी, इट कैन बी एदर मैक्सिमम और इट कैन बी एदर मिनिमम। सो दोनों वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसका मतलब बस यही है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z, ओके। एंड वट आर द कंस्टेंट्स, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। नेक्स्ट, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x एंड y बोथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। दीज आर द कंडीशंस, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. So these are the condition beta. Now we have to show that the value of z, which is also known as the objective function, it can have minimum value at more than 2 points, है ना, एक से ज़्यादा पॉइंट पे 2 या 3, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ऐसा मुझे शो करना है. So now first we will draw the diagram of the feasible region, okay, and for that we have to find out the points. So पहले यहाँ से put x is equal to 0 so that the value of y will be 60. If value of y will be 0, then what? Then the value of x will be 120. ठीक है. Similarly we can find, यहाँ से भी हम दो वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, अलग से कर ले रहा हूँ मैं. x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 लेके दो पॉइंट निकालेंगे. When x will be 0 then value of y is 60, when x will be 60 then value of y is 0, and third x minus 2y, x minus 2y put equal to 0 so that x will be 2y. Now find two coordinates. The very first, if x will be 0 then y will be 0, okay, and second, if x will be 30, suppose x 30 है, so y will be 15, ठीक है. इस तरीके से पॉइंट निकालेंगे. नाउ प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एंड फाइंड द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन. ओके, दिस इज ओरिजिन. नाउ सी बेटा, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये लार्ज में दिए हैं, मतलब बड़े अमाउंट में दे रखे हैं, तो आप अपना जो भी स्केल यहाँ पे लेंगे उसको थोड़ा सा लार्ज लेना. 1 2 करके इसको ब्रेक मत करना. इसको ब्रेक कर लेंगे हम कैसे, 10 से. सो दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. कहाँ तक जाना है, मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स 120 तक जाना है. सो इंक्रीज द एक्स एक्सिस लाइन, 80, 90, 100, 110,
120. Okay, and in y-axis we have to reach maximum 60. So 10, 20, 30, 40, 50, and this one is 60. Okay, ठीक. Now plot the graph. So 0,60 is the point, this one, and 120,0 is this one. Meet both the line. Write the name of this line. This is x plus 2y equal to 120. Second, x plus y is equal to 60. कौन सी लाइन है? 0,60 and 60,0. So this is again 0,60 and 60,0 is this point. Now meet both the points and write the name of this line. This is x plus y equal to 60. Now the third one, x minus 2y equal to 0. So what are the coordinates? 0,0. This is origin. And next 30, 15. So this is 30 and 15 must be there. ठीक है, between 10 and 20. So this will be like at that point. ठीक. So meet both the points. ठीक. Now write the name of this line. This is x minus 2y इक्वल टू 0. नाउ अब हमने क्या करना है, इन सारी लाइंस के देखना है कि रीजन कहाँ को जाएगा. व्हाट इज अवर फिजिबल रीजन. सो फॉर दैट द सी एट द फर्स्ट इनइक्वालिटी विच इज x प्लस 2y इज लेस देन 120. सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 ये लाइन है. सो लेस देन कहाँ जाएगा अल्टीमेटली, इससे नीचे को, यानी यू हैव टू गो बिलो दिस लाइन. ओके, नेक्स्ट x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 60. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 ये लाइन है आपकी. अब ग्रेटर देन इसके अबव जाएगा या बिलो, फिर वही है, एक पॉइंट ले लो इससे ज़्यादा बड़ा. लेट 70,0 पुट करें यहाँ पे 70 प्लस 0. सो 70 इज ग्रेटर देन 60 ना, और यही तो इनइक्वालिटी है. x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन 60. तो ग्रेटर देन कहाँ को जा रहा है, इससे बाहर. तो यानी इस लाइन से कहाँ जाना है, हमने बाहर को जाना है. ठीक है. नाउ सी x माइनस 2y शुड बी ग्रेटर देन 0. सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 ये लाइन है. ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 ये लाइन है. हमें कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, x माइनस 2y शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. तो ये है लाइन. ग्रेटर देन अबव जाएगा या बिलो, उसके लिए क्या करें, एक पॉइंट ले लें यहाँ से इसके ऊपर वाला. सो दिस इज द अबव, दिस इज द पॉइंट अबव द लाइन 0,10. सो पुट इट हियर 0,10. सो क्या मिलेगा अगर 0,10 रखेंगे, 0 माइनस 2 इंटू 10 दैट इज माइनस 20. और माइनस 20 क्या ग्रेटर देन होगा 0 के, नहीं होगा. तो इसका मतलब इससे हमें कहाँ जाना पड़ेगा, बिलो. तो इससे बेटा हम जाएंगे बिलो. नाउ सी द रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया. हमें कौन सा एरिया चाहिए, जो इन तीनों इनइक्वालिटी से, इन तीनों रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करे. हमें एक तरीके से इंटरसेक्शनल पार्ट चाहिए इस रीजन का. सो व्हाट इज द इंटरसेक्शनल पार्ट, ये देखिए, इस लाइन से अबव नहीं जाना है हमें, और इस लाइन से इधर और इससे इधर जाना है. सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन. This is our required feasible region. Okay, this one. Now mark the points. Let it be point P. ठीक है, let it be point P, corner point, and let it be point Q. Let it be point R and let it be point S. So बेटा point S के कोऑर्डिनेट तो दिख ही रहे हैं, 120 है. So 120,0 and coordinate of point R 60, 60,0. So point S having coordinate 120,0, point R having coordinate 60,0. Now we have to find out the coordinate of point P and the coordinate of point Q. ठीक है, ये दोनों कोऑर्डिनेट आप फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे, सिंस P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस लाइन. तो जो दो लाइन एक दूसरे को कट करके पॉइंट P हमें दे रही हैं, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. सिमिलरली फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस. कौन कौन सी, एक तो ये वाली, ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, और दूसरा ये वाली x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. सो ऑन बिहाफ ऑफ सॉल्विंग दीज इक्वेशन वी विल डेफिनेटली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड Q, और उसके बिहाफ पे 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ z एट दीज पॉइंट्स. जहाँ पे जो वैल्यूज आ जाएंगी वो मिनिमम होगी, मैक्सिमम आएगी तो मैक्सिमम होगी. सो लेट अस डू इट. फर्स्ट वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. सो फॉर पॉइंट P किस किस लाइन का इंटरसेक्शन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, एंड द सेकेंड लाइन कौन सी है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 60. नाउ सॉल्व बोथ द इक्वेशंस, माइनस माइनस एंड माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे.
सो -3y इज इक्वल टू -60, देन y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 ना 20, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई 20। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y हियर, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20 2 जा 40। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर 40, 20. Now coordinate of point Q. Since point Q is the point of intersection of line x minus 2y is equal to 0 and x plus 2y is equal to 120. तो सॉल्व करेंगे बेटा इन दोनों को। x minus 2y is equal to 0 and the second one is x plus 2y is equal to 120. Now solve on adding both the equation. 2x is equal to 120, then x is equal to 60. Now substitute the value of x here, so we get the value of y is equal to 60 पुट करेंगे यहाँ पे -60 यानी y is equal to 30. Okay, so the coordinate of point Q is 60, 30. Okay, now find the value of z at these 4 corner points. So the value of z at point S, which is 120, 0, z is given as 5x plus 10y. So 5 into 120, 5x plus 10, value of y is 0, so this will be 600. Value of z at point R, which is 60, 0, this will be 5 into 60 plus 10 into 0, that is 300. Value of z at point P, which is 40, 20, this will be 5 into 40 plus 10 into 20, that is 200 plus 200, that is 400. And the value of z at next point Q, which is 60, 30, so this will be 5 into 60 plus 10 into 30, that is 300 plus 300, that is 600. So what we are saying here, देखिए दो वैल्यू सेम मिल रही है आपको। मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है 600 एट टू पॉइंट्स। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज 120, 0 एंड द सेकेंड वन इज 60, 30 एंड 300 और 400 ये दो मिनिमम वैल्यूज हैं यहाँ पे, ठीक है। वही हमें दिखाना था कि मिनिमम वैल्यू मोर देन 1 पॉइंट्स पे हमें मिल रही है, तो मिनिमम वैल्यू 2 पॉइंट पे मिल रही है हमें। कहाँ पे, एक तो 60, 0 और दूसरा 40, 20। और जहाँ तक रही बात मैक्सिमम वैल्यू की, सो मैक्सिमम वैल्यू आर अटेनिंग एट 2 पॉइंट्स। द वेरी फर्स्ट इज 120, 0 एंड सेकेंड इज 60, 30. पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। So dear student, I hope you liked the video, ठीक है। Watch the video completely and on behalf of this information try to solve the remaining question of this exercise. Till then, bye bye, take care and have a nice day ahead.